नमस्कार दोस्तों। डिप्टी डायरेक्टर ईएसआईसी एग्जाम के लिए हम लोग कीवर्ड बाय कीवर्ड वी आर एनालाइजिंग द एंटायर सिलेबस. So we have analyzed some of the topics earlier. Today we will look at numerical ability and reasoning. So what is the objective of this video? आज हम ये समझेंगे कि for UPSC ESIC एग्जाम इस कीवर्ड के नीचे हम लोगों को क्या क्या और कितना पढ़ाई करना है. We have already done videos for some of the topics. आगे भी हम लोग करेंगे. If you want to be informed about आगे जो वीडियो होगा for different keywords of the syllabus, so I'll advise you to subscribe to our YouTube channel. You can also connect with our team through WhatsApp. There is a link which is given in the description below. Through that link, you can connect with our team. So let's get started. Before that, who we are? I am from Human Paytas. Now, incidentally, Human Paytas is uniquely positioned to assist you for UPSC ESIC exam. ऐसा क्यों? Because on the one hand, we have been advising students for different UPSC recruitment exams. So UPSC conducts two kind of exam, normal and recruitment. So different recruitment like ALC, EPFO, APFC, administrative officer, and so on. So we have been advising students on these exams. On the other hand, we are also known market leaders for management and commerce subjects. So this creates a unique synergy, and this is how we are able to advise you on this particular exam. UPSC ESIC exam. So I'm sure all of you have filled up your forms, and you can expect that there will be 120 questions of around 300 marks or maybe 100 marks. It doesn't matter, by the way. Then part A, part B. Part A will have 20 questions. When exam will happen? So guys, our best guess is that exam will happen sometimes in Feb, March of next year, 2022. So this is our best guess. Although to be realistic, it can also happen in during summers of next year. Why we are saying so? What is the logic behind that? Go to our website, go to ESIC page. There are some FAQs on bottom of that page, and there you will understand कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगले फरवरी मार्च से पहले इस पेपर का होने का चांस काफी कम है. Okay, and so how we are helping students prepare for ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम. हमारा 4 स्टेप का प्लान है. नंबर 1, हम आपके घर प्रिंटेड बुकलेट भेजते हैं. Then we'll teach you in live classes. Number 3, we'll make you go through an online question bank of more than 10,000 questions. And finally, mock test papers. So if you go through these 4 steps, you are ready for UPSC ESIC exam. इसके साथ आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है, करंट अफेयर भी हम आपको देंगे. So you can completely depend upon us. और जो ये 4 स्टेप का जो ये 4 स्टेप अप्रोच है, ये हमने पहले भी अडॉप्ट किया है. हमने पहले यूपीएससी ALC एग्जाम के लिए किया था, जो नवंबर 2017 में हुआ, एंड उसमें मोर देन 90% पेपर वाज फ्रॉम आवर कोर्स. अभी हमने इसी अप्रोच के साथ यूपीएससी EPFO किया है. अगेन इन दैट पेपर आल्सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम आवर कंटेंट. एंड टू बी प्रिसाइज, ये कितने सवाल आए वो एनालिसिस भी हम लोग पब्लिश करेंगे अगले कुछ दिनों में. आप हमारी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, वहां हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पब्लिश करेंगे कि कौन सा सवाल आया और कौन सा सवाल हमारे उससे नहीं आया. सो मोर और लेस दिस 4 स्टेप स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल, और वी एक्सपेक्ट कि ESIC एग्जाम के लिए भी दिस विल वर्क. अगर आपको डिटेल में समझना है कि 4 स्टेप्स में क्या क्या है, हम कैसे कैसे करते हैं, आप हमारा वेबसाइट पे चले जाइए, वहां एक बार आप समझ लीजिए. यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू ईमेल, फोन, व्हाट्सएप. एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम थ्रू व्हाट्सएप. अब आते हैं असली बात पे. असली बात क्या है? सो दिस इज सिलेबस ऑफ UPSC ESIC डिप्टी डायरेक्टर की, एंड दिस इज द कीवर्ड इन द सिलेबस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. अब हमें देखना ये कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है. सो टू अंडरस्टैंड कि इस वाले कीवर्ड में हमें क्या पढ़ाई करना चाहिए,
we analyzed previous year 17 recruitment exams of UPSC, and incidentally out of those 17 papers had questions on numerical ability. Now administrative officer BR manager canteen CSD stored officer with GSI, which is Geological Survey of India, and so on. तो हमारे सिलेबस में क्या क्या कीवर्ड है? हमारे सिलेबस में कीवर्ड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब तक जितने भी एग्जाम हुए किसी में सेम कीवर्ड नहीं था। So what was the keyword in the syllabus? Somewhere it was general mental ability and logical reasoning, कहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, कहीं जनरल मेंटल एबिलिटी थी, और कहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी था। तो देन इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि योर एंटायर सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट वन क्या है, एंड देन आई विल टेल यू डिटेल in detail also. Part one, which is more mathematical in nature, right? Mathematical aptitude, जिसको time, speed and distance, profit and loss, simple compound interest, time and work and so on. फिर एक रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग विच वी अंडरस्टूड कि इन शब्दों का ज्यादा मतलब नहीं है यूपीएससी के सिलेबस में। चाहे कोई भी एग्जाम था, ये दोनों तरह के सवाल पूछे गए हैं। और अब जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी से शायद हमें ऐसा लगता था कि इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा, यहाँ जहाँ लॉजिकल रीजनिंग था वहां नहीं पूछा जाएगा। तो हमने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर देखे। अब जैसे ये वाला पेपर है यूपीएससी एएलसी का है। यूपीएससी एएलसी में कीवर्ड था जनरल मेंटल एबिलिटी, लेकिन दोनों सवाल अगर आप देखोगे, दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री एंड दिस इज फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन एक दो पेपर हम आपको और भी दिखा सकते हैं। ये स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ का था, इसमें प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? अगेन नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएसआई का एग्जाम हुआ 2018 में। द कीवर्ड वाज जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इस अगर आप इसमें देखोगे, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं और दो सवाल आए हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जिसके 3 पॉइंट दिए हैं, और इसका सर्कल का इक्वेशन दिया है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इनफैक्ट जो ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हम लोग क्लास 10 तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = a², ये लोग 11th क्लास में जाके पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन। तो क्या हमें 11th का बुक पढ़ना है? होल्ड ऑन, विल टेल यू कि व्हाट वी हैव टू डू, कौन सा टॉपिक कहां से कितना हम लोगों को पढ़ाई करना है। आगे चलते हैं। सो कमिंग टू द नाउ समरी ऑफ आवर एनालिसिस, आई एम नॉट शोइंग ऑल द क्वेश्चंस। हमने कम से कम 120 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। वी हैव लुक्ड एट एवरी क्वेश्चन, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी हैव प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड जो अभी आपके सामने आएगी। तो आपको क्या क्या पढ़ाई करना है? अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसका आप न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, और दूसरा रीजनिंग, जिसका आप लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं या मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं, जो भी आप चाहो। सो पार्ट वन में आपको क्या करना है? आपको नंबर सिस्टम सारा बिल्कुल अच्छे से करना है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं डिवाइड करने पे, खूब सारे यूनिट डिजिट क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, ऐसे सवाल, मेंसुरेशन सारा करना है, ज्योमेट्री भी करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कई तरह के सवाल आते हैं। सिंपल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस निकालना, व्हेन विल अ ट्रेन क्रॉस अ पोल और ट्री और प्लेटफॉर्म, देन आपका गोइंग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर, देन अच्छा एक बड़ा फेवरेट, ऑल्दो हम स्ट्रांगली एक डिस्क्लेमर बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए हम जो तैयारी कराते हैं सब करना है, लेकिन फिर भी बताने के लिए आपको बता देता हूं कि जो रेसिस वाले क्वेश्चन हैं वो बड़े फेवरेट हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में। रेसिस वाले कौन से होते हैं कि 2 people were running, A is beating B by 50 meters or by 3 seconds and so on, A is giving B a lead of so and so, which one will win the race। तो ये काफी सवाल आता है। फिर नंबर सिस्टम में रिमाइंडर्स निकालने का ये भी काफी एक जरूरी टॉपिक है। सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, एनीवे, बट अगेन आई डोंट वांट टू गो देयर।
बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन कि ये जरूरी आता है या जरूरी नहीं आता है। आपको ये सारा सिलेबस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में नंबर सीरीज क्या होता है कि 2 4 6, अब आगे क्या आएगा, ऑफ कोर्स नॉट सो इजी बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। लेटर सीरीज अगेन सेम थिंग, रिटन इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग में 3-4 तरह का सवाल बनता है जो आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के किस तरह का सवाल बनता है। ये देखिए, ये 3 तरह के सवाल हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं। यू कैन लुक एट दिस वन, दिस वन, दिस वन, बाद में आप देख लीजिएगा। सो कोडिंग डिकोडिंग में कई तरह के सवाल बनते हैं। फिर आपको एजिज वाले करने हैं, कैलेंडर वाले सवाल करने हैं, किस दिन सोमवार पड़ेगा, किस दिन ट्यूसडे एंड सो ऑन। रिलेशनशिप वाले हैं, रिलेशनशिप में भी कई तरह का सवाल बनता है, जैसे कि ए बी का फादर है, मदर है, सो ऑन, एक ये वाला तो क्या बनेगा। फिर एक ऐसा सवाल बनता है ए एक्स बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, बी डिवाइडेड बाई सी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ सी एंड सो ऑन, ये वाले। तो रिलेशनशिप में कई तरह के सवाल बनते हैं। एक इस तरह का सवाल है कि लुकिंग एट अ पेंटिंग समबडी सेड ही इज ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, डॉटर ऑफ, सन इन लॉ ऑफ माई ऑन्ट एंड सो ऑन, वाला सवाल भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओड वन आउट, डायरेक्शंस, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से हमारा मतलब क्या है कि 6 लोग सर्कल में बैठे हैं, कौन किसके सामने बैठा है, कौन किसके दाएं बाएं बैठा है, या स्क्वायर के सामने एक स्क्वायर में बैठे हैं, 2 टेबल से बैठे हैं, सो ऑन। ये सब भी सवाल आपको करना है। अब ये वाले सवाल हो गए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले, और ये वाले सवाल हो गए अपने रीजनिंग वाले। अब 3-4 टॉपिक और भी हैं जो हम यूजुअली बुक्स में कम हम लोग देखते हैं, पर वो भी आपको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। वो वाले क्या है, एक आप प्रोग्रेशन जरूर देख लीजिएगा, एपी जीपी। हालांकि थोड़ा प्रोग्रेशन आप एएम के आसपास भी पढ़ लेते हैं जब एवरेज पढ़ते हैं, बट एपी जीपी इनफाइनाइट सीरीज का समेशन कैसे करेंगे, तो इसके सवाल भी आए हैं जो कि यूजुअली हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉट टू दैट डेप्थ, पर आपको थोड़ा जरूर देखना है कि सबका इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एरिया कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स क्या है, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको देखना है। देन सिलोजिज्म, अब सिलोजिज्म का सवाल जनरली यूपीएससी में नहीं आता है। 17 पेपर के 120 सवाल देखने के बाद एक सवाल आया है। आई होप एवरीबडी नोज कि सिलोजिज्म क्या होता है। ऑल ट्रीज आर मेन, ऑल मेन आर ब्लैक एंड सो ऑन, तो विच वन इज ट्रू एंड सो ऑन। सो वो सब सिलोजिज्म सवाल होते हैं। अगर आप देख लोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, पर एक सवाल आया है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि प्रोबेबिलिटी लोग क्लास 9th और क्लास 10th में एक चैप्टर है, पर वो काफी बेसिक है। तो प्रोबेबिलिटी के आप 11th-12th से भी आप लोग एक बार कुछ सवाल जरूर देख लीजिएगा। आपको बेस थ्योरम वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के जो सिंपल सवाल बनते हैं वो आप जरूर देख। अगर आपको इन सारे सवालों के डिफिकल्टी लेवल का एनालाइज करना है, एक बड़ा ही आसान तरीका भी है जो हम लोगों ने किया है। हम कोई विशेष ज्ञानी आदमी नहीं है। आप क्या कीजिए कि यूपीएससी की साइट पे जाइए, वहां प्रीवियस ईयर एक पेपर देखिए, लेकिन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स वाले देखिए, वहां बड़े सारे पेपर पड़े हैं, उनमें सब एक एक करके उठा के देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा वो है, तो हम जो आपको क्वेश्चन बुकलेट में देंगे, जो क्लास में पढ़ाएंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपको देंगे, तो वो करना काफी है। आपको कोई दूसरा बुक छूने का नीड नहीं है। वी डू टेक ड्यू केयर ऑफ एवरीथिंग की क्या रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। अगेन प्रोबेबिलिटी के साथ ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, तो वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज द सिलेबस। नाउ फाइनली ओवरऑल मुझे आपको 2-3 बातें बतानी है। नंबर 1, पहले आपको क्या करना है फॉर यूपीएससी एग्जाम। सबसे पहली बात आप याद रखिए, इवन बिफोर नंबर 1, नंबर 0, एक नंबर 0 है। नंबर 0 क्या है कि ये वाला सेक्शन मुश्किल नहीं है। आप ये बात कभी मत भूलिए कि यूजुअली 1-2 टॉपिक्स को छोड़ के 10th तक का सिलेबस आता है, और आप सभी ने 10वीं क्लास काफी अच्छे से पास किया हुआ है। एंड दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपके 15 से 20 सवाल आते हैं, कई बार 10 भी आ जाते हैं, वी कांट गेस दैट। और ये आपके, यू कैन सिक्योर दीज मार्क्स, यू कैन डेफिनेटली सिक्योर दीज मार्क्स।
तो इस सेक्शन को आप इग्नोर मत कीजिए, इस पे आप थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। हम इस टॉपिक को अपनी लाइव क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं, और लेकिन डू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि कहीं से भी सवाल आ जा रहा है, हमने आपको काफी एक ओवरऑल पिक्चर देके इसको प्रेडिक्टेबल कर दिया है, तो नाउ यू शुड बी प्रीटी ओके कि कहां से सवाल आ रहा है। दूसरी बात, सॉरी, कमिंग टू पॉइंट 1 नाउ, पहली बात कि डू नॉट वरी अबाउट स्पीड। अभी आप, और जब भी आप कोई भी कोर्स करेंगे, कहीं कोचिंग लेंगे, सबसे पहले आपको लोग क्या बताएंगे कि विल टेल यू सम शॉर्टकट्स, विल टेल यू सम मेथड्स ऑफ फास्टर कैलकुलेशन, विल आल्सो टीच यू सम वैदिक मैथ्स जिसमें आप तेजी सवाल करते हैं। फिर आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, 65 इंटू 65 हम लोग करते हैं तो 6 इंटू 7 42 ऐसे होता है। आप ये सब मत कीजिए और न ही ये सब सीखने का कोशिश कीजिए। क्यों मना कर रहे हैं? 2 कारणों से। नंबर 1, अगर आप 5वीं क्लास से 65 इंटू 65 ऐसे मल्टीप्लाई करते आए हो, अगर आप ऐसे करते आए हो जब भी 5वीं 6ठी क्लास से, अब आप 2 महीने में ये सब नहीं सीख पाओगे। ये तो ये इसका पहला रीजन है, इट्स नॉट वर्क। सेकंड बात, अगर थोड़ा सीख भी लोगे, उस दिन एग्जाम की स्ट्रेस में आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करने वाले हो। अब आप लोग कहोगे अरे आप व्हाट आर यू एडवाइजिंग अस, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर हम स्पीड, फास्टर मेथड ये सब नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपका 120 सवाल है, 120 मिनट है, ठीक है। मैथ के जो 15-20 सवाल है उनके लिए आप 30 से 40 मिनट अलग से निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे अभी आपको हम बताते हैं। डू नॉट वरी अबाउट स्पीड, जस्ट फोकस ऑन कि बस मैं इसका सही जवाब निकाल दूं, चाहे समय ज्यादा भी लग जाए। दिस शुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। अगर कोई पहले इस लेवल पे, अगर किसी ने कैट वेट का अच्छा कोचिंग किया है, कोई बैंकिंग FI बैंकिंग वगैरह के एग्जाम अच्छे देता है, सब जानता है, ठीक है, वो थोड़ा सोच सकता है। लेकिन अगर आप वहां लेवल पे नहीं हो, आई एम श्योर आप सब लोग नौकरी कर रहे हो कहीं कहीं साल से, तो डू नॉट वरी, ये सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। जस्ट इतना सीख लीजिए कि क्या मैं इसका सही जवाब निकाल सकता हूं, बस आपका पेपर हो जाएगा इतने से ही। अगली चीज, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट फंडामेंटल्स। हम कोई पूरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, पूरा रीजनिंग के लिए आपको फॉर्मूला याद करने का नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह सब लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी चैप्टर खोलेंगे, उस चैप्टर के पहले 15 फॉर्मूले होंगे, फिर हम उसके सवाल करना शुरू करेंगे। इस वाली अप्रोच से आपके सवाल ठीक नहीं होंगे, क्योंकि यूपीएससी में सवाल थोड़ा सा घुमा के कुछ कुछ लंबा सा बना के देता है। आप देख लीजिएगा पेपर पुराने, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ह्यूमन पैराडाइज से जुड़े, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमने रिक्रूटमेंट के जितने भी सवाल आए हैं, 120 130 सवाल आए हैं, वो सब भी हमने आपको सोल्व करके डाल दिए हैं, स्पेशली फॉर ESIC एग्जाम, ठीक है। तो ये 15 फॉर्मूले याद करने से सवाल ठीक नहीं होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि बुक्स में जनरली ये लिखा होगा कि अगर मैं A से B गया और फिर B से वापस A आया, स्पीड x पे गया, वापस स्पीड y पे आया, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 2xy और x प्लस y। ये सब याद मत कीजिए, ये सब अप्रोच काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और उसमें A से B गया, ठीक है, और B से C गया और C से D गया, और अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। इवन अगर A से B गया और B से C गया एंड AB और BC का डिस्टेंस बराबर नहीं था, तब भी फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा आपका। इसलिए फॉर्मूला याद, सिंपल एवरेज स्पीड निकालना है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, बस इससे आपका हर एक सवाल हो जाएगा। बाय द वे, हाँ, आप एक चीज जरूर कीजिए इस वाली बात को समझने के लिए, हमारा वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे ESIC का पेज है, ESIC के पेज पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ, जिसमें हमने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया है। 1 घंटे का वीडियो है, हमने आपको पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक भी फॉर्मूला यूज किए बिना बता दिया। शायद एक फॉर्मूला हमने यूज किया होगा, और एक फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, बस। उसके अलावा कोई फॉर्मूला हमने आपको याद नहीं कराया, और सारे के सारे सवाल कर दिए हम लोगों ने। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा।
ये समझने लिए कि नहीं कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि ये समझने के लिए कि कैसे बिना फॉर्मूला याद करने आपको अपना पढ़ाई करना है। ठीक है। थर्ड थिंग, अगेन टाइम मैनेजमेंट। 120 आपके क्वेश्चन है, 120 आपके पास मिनट है। अगर आपने अपना तैयारी किया है, जो कि आप करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट में कभी दिक्कत नहीं होगा। 120 में से अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 सवाल होंगे जहां कुछ कैलकुलेट करना होगा या कुछ सोल्व करना होगा, जहां उनमें से 1-2 सवाल अकाउंटिंग के हो सकते हैं, बाकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ही होंगे, बाकी आपका एफएम का कोई एक सवाल हो सकता है, हार्डली आते नहीं है जनरली यूपीएससी में वो सब। ठीक है। तो आप जो बाकी आपके 100 सवाल हैं, हमारे हिसाब से इन 100 सवाल है क्योंकि थ्योरेटिकल हैं, इनको करने के लिए आपको 60 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर आपने तैयारी किया है, कोई भी थ्योरेटिकल सवाल 30 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगता समझने में कि मुझे आता है नहीं आता है, बाकी आप टाइम कितना भी वेस्ट करते रहो कि जैसे कोई विजडम है जो ऊपर से आएगी 2 मिनट सोच लोगे, तो नहीं आती है, आता है नहीं आता है बस। उसके अलावा ठीक है, अगर आप 60 मिनट के लिए आप 80 मिनट लगा लीजिए, आपको कुछ एलिमिनेशन करना, गैस वर्क करना, ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। सो बाकी सवालों के लिए आप 30 से 40 मिनट जरूर अलोकेट कर लीजिए। क्यों हम आपको ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि मैथ्स का हर एक सवाल ठीक करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम सबको आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम सब 10वीं पास है। दिस इज अवर प्लान, दिस इज व्हाट वी एडवाइज। ओके, देन लास्ट एंड फाइनल, ये बैंकिंग एसएससी कैट वाला, बैंकिंग एसएससी वाला एग्जाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जनरली फास्टर कैलकुलेशन, ये वो टिप्स ट्रिक ये सब बताते रहते हैं, मत कीजिएगा, एब्सोल्युटली नोट। ये कैट वाला एग्जाम भी नहीं है। क्यों नहीं एग्जाम है? क्योंकि कैट थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, थोड़ा सा इसका लेवल कम है, कैट से डिफिकल्टी लेवल इसका कम है, काफी कम है, इसलिए वो सब भी एग्जैक्टली आपको पढ़ने का नीड नहीं है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड for this topic of numerical aptitude, numerical ability and reasoning. Again, do consider our course. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कुछ आपको जरूरी सवाल बता देंगे, पेपर बता देंगे, कुछ स्मार्ट आपको बना देंगे, नहीं, बट व्हाट विल मेक श्योर दैट कि आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम स्कोर आए। मिनिमम एफर्ट कैसे? बिकॉज वी डू लॉट ऑफ रिसर्च कि किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है। देन व्हाट वी आल्सो डू कि वी प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड टू एंड। आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कुछ और नहीं करना है, यू कैन टोटली डिपेंड अपॉन अस फॉर एवरीथिंग। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन तब भी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद जो मेहनत करने में आपको 8 महीने लगता, वो काम हम शायद आपको 3 महीने में करा देंगे। सो दिस द वैल्यू विच वी एड। इस जो हमने आपको वीडियो में आज हमने आपसे बातें की हैं, अगर आप इस बात में किसी बात से डिसएग्री करते हैं, आपका स्वागत है, नीचे कमेंट्स में लिखिए, बताइए कि क्यों हम गलत हैं और व्हाई यू डू नॉट एग्री विद अस। हम हर एक कमेंट का जवाब देंगे। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग नॉनसेंस, वी विल नॉट डिलीट द कमेंट, विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट। एंड अदरवाइज यू कैन आल्सो कनेक्ट विद us, our team directly. The link is given in the description below. उस वाले लिंक से आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और आप इमीडिएटली यू कैन स्पीक टू आवर टीम। थैंक यू सो मच, थैंक्स।